ओके गाइस, कल के लेक्चर में किसी को डाउट? कुंदन, कुणाल, ज्योति, आदित्य? अविनाश कल सब समझा था। इंडस्ट्री में तो वो ज़्यादा यूज नहीं होते, बट हाँ, मॉड्यूलस इज द वन व्हिच इज मोर रिक्वायर्ड। वो आना Avinash, चाहिए। यस कुणाल। your voice is not clear. सेम विद ऑल ऑफ यू, सबको ये प्रॉब्लम है क्या कुणाल? Yeah. ओके, श्रुति, माय वॉइस इज क्लियर टू यू? इट्स क्लियर, थोड़ा सा जोर से बोलिए बस, थोड़ा सा। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी कुणाल चेक लाइक इट्स क्लियर? It's better अभी ठीक. Yes, yes, yes. Sorry. Like once I connect with this AirDrops, like it happens. थोड़ा सा आवाज slow हो जाता है. Okay. Still, if you guys are facing same issues, let me know so that directly like हम mic पे ही कर लेंगे. Okay. Fine. Guys, okay. So yesterday we started with the operators concept, right? Board is visible to you, right? Board दिख रहा है ना, guys? Yeah. Okay, okay. So the first thing that we are going to do, like we are going to revise and fine. So what is operator that we have seen yesterday, correct? So प्राइमरी हमारा फोकस होता है कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर कौन से हैं. सो लाइक वेल कीप इट वेरी सिंपल. फर्स्ट हम Arithmetic. मैट्रिक ऑपरेटर्स को अंडरस्टैंड करेंगे, राइट? दैट वी हैव डिड यस्टरडे, बट कुछ चीजें हैं हम आज और डिस्कस करेंगे और उसको लाइक सिंटैक्शियल वे में कैसे रिप्रेजेंट करना है, दैट वी विल सी टुडे. देन we have relational या फिर comparison operator. Whatever you guys are मतलब prefer करोगे वो नाम आप दे सकते हो. दोनों का मीनिंग almost सेम हो जाता है. कंपैरिजन या फिर रिलेट करना, relational operator. And the last one but not the least, we have a logical operators. ठीक है? Logical operators. So these are the basic things that we will be required throughout the program, correct? So arithmetic operators are very simple. Arithmetic operators are very simple. It means कि आप easily उस पे operation कर सकते हो. Then we have a comparison operator कि दो values को compare करना. That will be taken care by this comparison या फिर relational operator. And last but not the least, we have logical operators. Logical operators मतलब logical कंडीशंस वगैरह आती है, उस टाइम पे हमें ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है. ठीक है? विल टॉक अबाउट दिस.
I hope everyone has joined. Okay, let's wait for next 2-3 minutes so that we can start. Guys, is my voice is comfortable or it's still a bit low? Comfortable. Sure. Okay. Okay. Fine. बोर्ड विजिबल है, हैंडराइटिंग विजिबल, बोर्ड टिल्ट नहीं लग रहा है, इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेट सरफेस. Yeah. Yeah, straight. ओ ओके ओके फाइन. 11 still 2-3 people are missing. Okay. गाइस अभी तक जो लेक्चर हुए हैं उसमें मतलब स्पीड वगैरह लाइक इज ऑल ओके, यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग. आई बिलीव इनिशियली थोड़ा स्लो जा रहे रहेंगे, कुछ और भी होगा तो डोंट वरी. एंड जिनको सारी चीजें नई भी लग रही रहेगी वो भी क्लियर होनी चाहिए. लाइक वी शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. Once we start with the actual topic, by end of this weekend, I'll tell you like कि किस तरीके से आपको कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने हैं, किस तरीके से हमें प्रोग्राम करने हैं, so that from this weekend and from next week onwards we are going to focus on programming, actual part of programming. Before that जो चीजें हमें यूज होने वाली है will cover up. ठीक है. It's already 86. Siddhant, like all doubts are clear. Yesterday's कुछ भी doubt, कुछ भी topic का. No, no doubt, Avinash. Okay, fine. Radhika, for you, like, is everything clear? I think you are trying to speak, but your voice is not clear. Radhika, no issues. From your end, Pradeep? All clear. Okay, okay. Pooja? Like, No, sir, everything is clear. right? Comfortable होता है कि फास्ट आता है अंडरस्टँडिंग नाही. करायला आफ्टर अ लॉन्ग नाही 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 Sounds good, बेसिक right? आहे तर कळत आहे. Okay, fine. Kundan, for you, any kind of No, Avinash. okay, fine. Ketan? Okay, I believe Ketan, you are joining for the very first time. Okay, no problem, Ketan. Aditya, are you having any kind of doubt, queries? Fine, should we start then? Like it's already 8. We बस we लॉजिकल ऑपरेटर का कल मैंने बोला था. logical. Okay. That we are going to cover up now. Okay, guys. Like yesterday we have seen arithmetic operators. So if we talk about arithmetic operators, few operations that we have, that is addition. Next we have subtraction. Next we have multiplication. Next we have division. Right, guys? And one symbol wrongly लिखा था मॉड्यूलस ऑपरेटर. तो द मॉड्यूलस ऑपरेटर, दिस परसेंटेज डेरिवेटिव साइन जो बोलते हैं ना, दिस साइन विल बी देयर फॉर हियर फॉर मॉड्यूलस ऑपरेटर. एंड देन वी हैव नेक्स्ट ऑपरेटर, कौन सा है ऑपरेटर, लाइक इंक्रीमेंट ऑपरेटर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव डिक्रीमेंट ऑपरेटर. No, Avinash. बस No. इसको याद रखना, दिस लाइक सिंबल आई
Okay, fine. So if it is clear, then we have seen comparison operator. So if we talk about comparison operator में क्या है? हमने पहले तो देखा था less than sign, guys, correct? Then greater than. Then हमने क्या देखा था? Less than equals to. Equal to. correct? फिर हमने देखा था greater than equals, फिर equals, और then not equals and not operator. But you can consider not operator को अगर आपको comparison operator में नहीं देखना है तो you can consider it as a logical operator as well. No issues in that case. ठीक है? So you can keep this as a comparison operator. Then we have logical operator में हमें क्या है हमारे पास? पहले तो logical and, then we have logical or, correct guys? Then we have logical not, correct? Any doubt guys? ये इतने ऑपरेटर्स हमें ज्यादा यूज होने वाले हैं. Yes, still there are so many operator like bitwise operator and all, but that are not required at all. एक ऑपरेटर हमें important लगता है. Other than this, like we require an operator that is assignment operator. But assignment operator को हमने already consider करा है, understand किया है कि ये assignment operator क्या करता है guys? Every time if we talk about this assignment operator, जो right hand side value है, right hand side value कहाँ पे assign हो जाती है? Left hand side पे assign हो जाती है. Am I correct? Am I making sense guys? Understand हो रही है ये चीजें? Like Yes. हमेशा if you talk about इसको कोई भी equals to sign नहीं बोलेगा. ये क्या है? It is assignment operator. Correct? This equals to sign is assignment operator. What this assignment operator is going to do, right hand side value को करेगा left hand side में store या फिर assign. That's why it is called as an assignment operator. So ऐसे छोटे मोटे operators हैं and even कुछ C++ oriented operators भी को भी include किया गया है Java में, but that is not required at all. So we being programmer, being any programming skills अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें ये चीजें बहुत important है कि ये operators हमें understand होने जरूरी है. So simple, ये तो आपको पता है addition दो नंबर को ऐड करेगा, ये subtract करेगा, multiply करेगा, divide करेगा, division operator में quotient as an answer consider करेगा, modulus में remainder as an answer consider करेगा, increment operator एक से increase करेगा, decrement operator एक से decrease करेगा, right? If you talk about comparison operator, दो values को compare करेगा. If I have A and I have B, इन दोनों values को मेरे को compare करना है. So what I can do? I can use this comparison operator less than, greater than. तो इनका आंसर जो आता है ये ट्रू या फिर फॉल्स में आता है कि ये लेस है, ग्रेटर है, लेस देन इक्वल्स है, ग्रेटर देन इक्वल्स है, इक्वल्स है कि नॉट इक्वल्स है. whenever you want to specify कि ये दोनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए तो guys you cannot use this operator because this is assignment operator. If you want to show or या फिर if you want to test कि दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं, that time you have to use equals to sign 2 times. This is what this comparison operator is. कि ये comparison operator दो वैल्यू को कंपेयर करेगा. And we have seen logical operators yesterday. ये logical and logical or logical not, right? इन दोनों में किसी का डाउट है क्या? अरिथमेटिक या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर में किसी का कुछ भी डाउट है तो you guys can ask me. Newcomers, anyone? I mean, Vaibhav, Ketan, Dipti, I think you guys are coming for the very first time. इसमें ये आइडिया है इनके बारे में, like should I explain once again? Speak up, मतलब कोई टेंशन नहीं है आपको. If you can ask the doubt, I mean, you guys are welcome. Okay, ठीक है. अगर कुछ डाउट नहीं है तो we can go ahead. We can start writing or understand the code and the logic behind it. But before that, we'll cover up this logical operator. The first logical operator we have AND operator. So yesterday I told you one thing. सिंपल सा ऐसा कंसीडर करो कि एक A इनपुट है और दूसरा B इनपुट है. ठीक है. A का वैल्यू अगर 0 है, B का वैल्यू भी 0 है, तो रिजल्ट, व्हाट रिजल्ट आई शुड एक्सपेक्ट?
जब मैं लॉजिकल एंड की बात करूंगा तो एंड ऑपरेशन रिप्रेजेंट करेगा मल्टीप्लिकेशन. एंड ऑपरेटर क्या रिप्रेजेंट करेगा आदित्य? इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन, राइट? सो हियर इन दिस केस 0 को मल्टीप्लाइड बाय 0 कर दिया हमने तो रिजल्ट विल बी 0. ठीक है. Here now ऐसा है इनपुट कि A 0 है and B 1 है. So in this case 0 multiplied by 1 I'll be getting 1 as an answer. Sorry, multiply करूंगा तो 0 को 1 से multiply करूंगा तो I'll be getting 0 as an answer, right? 0 as an result. So next we have 1 A as in 1 B as in 0. इसको multiply करो 1 और 0 को you will get 0, correct? एंड लास्ट ऐसा है कि A 1 है and B भी 1 है. In that case you will be getting 1 as an answer. 1 को multiply by 1, that is 1. Correct? Guys? Aditya? Correct. Specifically, like you were having this doubt, right? I hope this is clear. This logical AND. ये logical AND operator है. And if we talk about this logical OR, this logical OR में क्या हो जाता है कि इन दोनों इनपुट्स का एडिशन करोगे, ना तो मल्टीप्लिकेशन. तो अगर आप लॉजिकल OR देखोगे 0 को 0 से मैंने प्लस कर दिया तो I'll be getting 0 as an answer, करेक्ट? 0 and 1 को ऐड कर दिया तो I'll be getting 1 as an answer. 1 and 0 को ऐड कर दिया I'll be getting 1 as an answer. 1 and 1 वो 2 होता है, but here you have to represent 1 itself. So this is the logical OR. लॉजिकल और, ठीक है. इसको जब एक्चुअल प्रोग्राम में करेंगे और भी इजी हो जाएगा ये. एंड एज आई सेड यस्टरडे 0 रिप्रेजेंट्स फॉल्स एंड 1 रिप्रेजेंट ट्रू. तो आप उस तरीके से भी याद रख सकते हैं उनको. फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स, ऐसे. मतलब एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है. रिजल्टेंट कंडीशन रिजल्ट आपको फॉल्स ही मिलेगा अगर आप लॉजिकल एंड यूज कर रहे हो. अगर लॉजिकल और करोगे तो रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा. ठीक है. एनी क्वेरीज इन दिस? इज इट क्लियर? शुड आई मूव अहेड? If you guys are not having any queries, okay. Aditya, still any doubt? You're on mute. If you want to say, if you want to ask anything, you can. नहीं सर, अभी ठीक है. क्लियर है. और जब हम करेंगे ना प्रोग्राम्स में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इजी हो जाएगा. बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब लॉजिकल एंड करोगे तो मल्टीप्लिकेशन करना है एंड लॉजिकल और करोगे तो एडिशन का लॉजिक आपको याद रखना है. सो दैट योर लॉजिक विल नॉट मतलब जो आपको डिजायर्ड रिजल्ट है वो रॉन्ग नहीं आएगा, वो करेक्ट ही आएगा. ठीक है. फाइन. सो गाइस, नेक्स्ट we'll see basic program कैसे लिखना है Java में. So like we'll go ahead with the syntax of any simple program. जैसे कि कॉलेज डेज में आपने हेलो वर्ल्ड वगैरह किया रहेगा, उतना सिंपल प्रोग्राम हम देख लेते हैं. like what things you need to do, what things you have to understand before writing with the programs. मतलब फर्स्ट चीज आपको याद रखना है कि every time Java program will start with class. A class is the entity which is really important. ये class क्या होता है? We'll define it later. Class, let's say class के बाद जो class का name आएगा, class name, class name. इस तरीके से आपको क्रिएट करना है. और क्लास नेम every time it is going to enclosed inside a open curly brace and closing curly brace. ये क्लास का बाउंड्री है. ठीक है. क्लास नेम, अभी क्लास नेम के आगे इसको ओपन कर्ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट आपको स्पेसिफाई करना है और इसी के अंडर में आपका प्रोग्राम आएगा. ठीक है. Cool? Anyone? नहीं समझा ऐसे? So every time whenever we are going to start with the Java program, you guys should start with class name.
एंड क्लास नेम जो रहेगा, क्लास नेम का फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, ठीक है, क्लास का फर्स्ट नेम शुड बी कैपिटल. सो लेट्स बिगिन गाइस. सो क्लास हम ऐसे करते हैं डेमो, क्लास डेमो प्रोग्राम हम लिखते हैं. सो जब भी क्लास लिखोगे, क्लास के बाद इनसाइड द क्लास ओपनिंग कर्ली ब्रेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस में एक स्टेटमेंट आपको लिखना है, दैट इज पब्लिक static void main, public static void main, inside the bracket string का is capital, string args, arguments, string arguments. So this is the your statement. इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का ओपन कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे आएगा उसका क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, ठीक है. इनसाइड दिस आप प्रोग्राम लिखोगे, ठीक है. सो अभी जैसे मेरे को कुछ प्रिंट करना है सिस्टम पे, कंसोल पे मेरे को कुछ प्रिंट करना है. इन दैट केस व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू यूज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या फिर प्रिंट एलएन, system.out.print. ये स्टेटमेंट है जावा में जो प्रिंट करने के लिए यूज होता है, system.out.print. तो कंसोल पे आपको कुछ प्रिंट करेगा. सो लेट्स से इनसाइड डबल कोट्स आई हैव रिटन हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, दैट्स इट. डबल कोट्स कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट, सेमीकोलन, दैट्स इट गाइस. ये है आपका सिंपल सा प्रोग्राम. आई एम वेरी श्योर कि आज प्रोग्राम देख के थोड़ा सा अनसर्टेन हुआ रहेगा, बहुत सारी कंफ्यूजन आई रहेगी, बट गाइस मार्क माय वर्ड, इट इज वेरी इजी. थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है हमें, ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टार्ट विद द इनिशियली विद क्लास, ठीक है. क्लास का फर्स्ट नेम शुड बी कैपिटल, क्लास नेम, ओपन कर्ली ब्रेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेस. क्लास का ओपन कर्ली ब्रैकेट यहां से स्टार्ट होगा एंड सबसे लास्ट होगा, ठीक है. इनसाइड दिस वी हैव पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. इसका मीनिंग आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, बिकॉज़ ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है एंड यू शुड हैव अ क्लियर क्लैरिटी कि ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का मीनिंग क्या है, राइट. बिकॉज़ जो प्रोग्राम हम करने वाले हैं उसका अंडरस्टैंडिंग हमें होना चाहिए. तो दैट दिस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args ये ऐसे लिखना है, ये यहां से लेके यहां तक एंड हो जाएगा, ठीक है. नॉट हियर, फ्रॉम हियर एंड इनसाइड दिस मैंने लिखा system.out.print, print whatever you want, hello world. तो इसका रिजल्ट क्या आएगा गाइस? इसका रिजल्ट आएगा सिर्फ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है. तो ये बेसिकली यहाँ पे किया क्या है, system.out.print. प्रिंट में जब आपको कुछ भी प्रिंट करना है तो दिस स्ट्रिंग शुड बी इन डबल कोट्स, स्ट्रिंग शुड बी इन डबल कोट्स. तो डबल कोट्स में आप जो भी लिखोगे हेलो वर्ल्ड, वो सिस्टम प्रिंट कर देगा आपके कंसोल पे, आपके आउटपुट विंडो पे, लॉक कंसोल लॉक पे, ठीक है. एनी क्वेरीज इन दिस कुणाल? अभी स्ट्रिंग के आगे क्या लिखा है? स्ट्रिंग के आगे args, जस्ट args और क्या साइन? आर्गुमेंट है, उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट है args. डोंट वरी, इसको और क्लियर करना है हमें, ठीक है. जस्ट फॉर इन टाइम बीइंग हम ऐसे लिखते ऐसे समझ के आगे जाते हैं, फिर इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है. पब्लिक स्टैटिक, यस पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ये जो है ये सिंटैक्स ही है ना? यस, इट इज अ सिंटैक्स. ये जो मेन मेथड, ये मेन जो होता है ना, ये मेन, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. ये हमेशा ऐसे ही आएगा. और इस मेन के आगे वॉइड क्यों लिखते हैं, उसके आगे स्टैटिक क्यों लिखते हैं, उसके आगे पब्लिक क्यों लिखते हैं, ब्रैकेट में स्ट्रिंग args क्या होता है, इसका भी एक लॉजिक है. बट आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग दिस लॉजिक एज ऑफ नाउ बिकॉज़ थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा. बिफोर मूविंग अहेड, जब हम आगे जाए, मतलब once we have a clear idea कि ऐसे लिखते हैं, फिर ये क्यों लिखते हैं, we'll have a clear idea on that कि
एग्जैक्टली कंपाइलर क्या काम करता है, इंटरप्रेटर काम क्या करता है, जेडीके क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, दिस टर्म्स आप जब आप ये टर्म्स अंडरस्टैंड कर लोगे ये पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। शायद ये पूरा स्टेटमेंट समझने में 1 मंथ भी लग सकता है गाइस, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज दैट इज के तब तक हम जावा का आधा पोर्शन सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, ये सारी चीजें आते आते, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आपको क्लियर हो जाएगा ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ये ऐसे लिखना है, इट इज अ सिंटैक्स, यस वेरी ट्रू आदित्य, और एवरी टाइम ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अविनाश, ये जो पहले लाइन में आपने सेमी कॉलन क्यों नहीं लगाया? आपने बोला था कि सेमी कॉलन हर इसके बाद लगना चाहिए, ये वाली लाइन पे, राइट? हाँ, उसमें और नीचे वाली में राइट। अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा कुणाल, तो ये जो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट है इसका मीनिंग ही नहीं रहेगा, ये लाइन यहीं पे एंड अप हो जाएगा, ओके, ठीक है। क्योंकि क्लास है ना, एवरीथिंग इज आई मीन क्लास इज द होल्डर जो कि होल्ड कर रहा है इन सारी चीजों को। अगर मैं इसको एक सेमीकोलन यहाँ पे लगा दूंगा, इसका मतलब उसका लिमिट ही वहीं तक है, इसके आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। दैट इज द रीजन यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा, ये ओपन ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ये स्टेटमेंट को बी में अगर सेमीकोलन लगा दूंगा तो वो वहीं पे एंड अप हो जाएगा, बट इसका बाउंड्री यहाँ से लेके यहाँ तक है, करेक्ट। बट हाँ, रेस्ट ऑल द स्टेटमेंट जो आपको एंड करना है जहाँ पे, वहां पे आपको सेमीकोलन यूज करना है मैंडेटरी, ठीक है। अब आई टेल यू स्टेप बाय स्टेप, डोंट वरी गाइस। इसमें कुछ डाउट? बस इसमें एक ही चीज समझो, यस यस, So the syntax is case sensitive, right? यस इट इज अ केस सेंसिटिव। जैसे सिस्टम का वो कैपिटल S है, यस सिस्टम का ये कैपिटल, ये S should be capital and why I'll tell you later. The string का S is capital again. Let me use different color. The string का S should be capital. The string का S should be capital. Then ऐसा ये तो एरर नहीं देगा आपको, बट दिस इज अ जनरल प्रैक्टिस कि क्लास का नेम शुड बी स्टार्ट विद अगेन विद कैपिटल लेटर, बट या दिस इज केस सेंसिटिव, दिस इज केस सेंसिटिव। Anything else? I mean, Pratik, what was your question? That's it, right? Okay. Guys, और आपके किसी के डाउट्स? इसमें एक ही चीज आपको क्लियर रखनी है, दिस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डबल कोट्स में मैंने क्या लिखा, वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, एंड दिस वाज माय एक्सपेक्टेशन कि मेरे कंसोल पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए, ठीक है। एंड इस डबल कोट्स को आप इंक्रीज करोगे या फिर और कुछ लिखोगे, जैसे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू डू द डॉट डॉट एक्सक्लेमेशन जो भी दे रहा है, फिर एंड में डबल कोट्स कंप्लीट करो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट हो जाएगी, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, ठीक है, ठीक है। तो जो आपको चीजें प्रिंट करनी है, यूजर डिफाइंड मैसेज जो है एवरी टाइम इट शुड बी इन डबल कोट्स। अभी के लिए इतना ही याद रखो, ठीक है गाइस, क्लियर क्लियर। ओके, शुड वी गो अहेड, मतलब हम थोड़े से प्रोग्राम्स अभी करते हैं, इफ यू गाइस आर कंफर्टेबल, चलेगा ना कि नहीं चलेगा? okay, sure. Otherwise you will be like Avinash, you said we are going to start from next week, while we are starting today we are very scared of programming, because programming का कोई टेंशन नहीं लेना गाइस। यहाँ पे मैं उसी चीज के लिए हूँ कि आपका प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स से हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को कैसे यूज करना है वो समझते हैं। The first thing we'll start with class, let's say class program, I'll use pro, open curly bracket, here public static void main, guys, string args, ओपन curly brace। नाउ गाइस मेरे को एडिशन करना है, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या यूज करना है, इंट डेटा टाइप देना पड़ेगा सबसे पहले। You have to declare variables.
yes, so here int मैंने a वेरिएबल ले लिया, a को यहीं पे इनिशियलाइज कर देते हैं, लेट्स से a का वैल्यू ले लेते हैं 50, देन एक वेरिएबल लेते हैं int b इक्वल्स टू लेट्स से we'll take it 70। इसका रिजल्ट स्टोर करने के लिए हमें क्या जरूरी लगेगा गाइस, c, करेक्ट? तो यहाँ पे ही करना है तो भी कर लो, बट I'll declare over here and मैं ऑपरेशन यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ इनिशियलाइजेशन का। c इक्वल्स टू मैंने क्या कर लिया a प्लस b। नाउ मेरा आंसर किसमें स्टोर है गाइस? C. राइट, तो हमें c को प्रिंट करना है, तो c को प्रिंट करने के लिए व्हाट वी विल डू, we'll use System out. System out. System dot out dot print या फिर print ln, whatever you want to use। I'll use print ln next line, इसका मीनिंग होता है okay। So next line पे क्या print कर लूंगा मैं, like my result is stored into C, so here inside this box I'll print C, open curly bracket, sorry open bracket and close bracket में मैं C को print कर लूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे मेरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, राइट। सो ऑन कंसोल व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, देखो यहाँ पे int a इक्वल्स टू 50 था, int b इक्वल्स टू 70 था, int c था, या c इक्वल्स टू a प्लस b। तो पहले क्या होगा, राइट हैंड साइड का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, क्या होगा 50 प्लस 70 that is 120। so this ये 120 वैल्यू है वो असाइन किसको हो जाएगी, c को असाइन हो जाएगी। now we have this value stored inside a c variable and उसको प्रिंट करने के लिए मैंने यूज किया system.out.println c। तो on the console I'll be getting 120 as an answer, correct guys? Correct. Yes. Correct. Yes. कुछ डाउट, किसी का कंफ्यूजन, किसी का कुछ कंफ्यूजन है? Okay, I just want to Siddharth, I believe you have doubt। while जब भी हम वो प्रोग्राम लिखेंगे तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड वो स्टेटमेंट एज इट इज लाइक कॉपी करना है, हर बार टाइप करना होगा क्या वो? ये टाइप करना है, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, या फिर हम कुछ ऐसा एडिटर यूज करेंगे उसमें वो प्रीडिफाइंड भी आ जाएगा। ओके, लाइक व्हेनेवर वी स्टार्ट द प्रोग्राम वही से स्टार्ट करना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। यस। ओके, और भी मॉडिफिकेशन होंगे इन फ्यूचर में, जब हम सिलेनियम वगैरह यूज करेंगे ना, जब ऑटोमेशन टेस्टिंग एक्चुअल में सीख करेंगे, दैट टाइम ये स्टेटमेंट की जरूरत भी नहीं लगेगी हमें, इसका इंटरनेट हम ढूंढ लेंगे जो कि अभी मार्केट में यूज होता है। वेल कम टू दैट, बट उसके लिए बहुत टाइम है, पहले 2 महीने तक तो आपको ये समझना है कि ये ऐसे ही रहेगा। ओके। और एक हम लोग जो ये सीधा एक लाइन में लिखेंगे, मतलब कुछ स्टार्टिंग में जो स्पेस देते हैं वो नहीं होगा उसमें, जैसे पाइथन में फॉरवर्ड स्पेस यहाँ पे स्पेस देते हैं। हाँ, लेफ्ट साइड में मतलब दे सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, बट नहीं देना चाहिए, ठीक है। ओके गाइस, नाउ आई वांट अ मॉडिफिकेशन कि ये 120 आंसर ऐसा नहीं आना चाहिए, इस 120 आंसर से पहले मेरे को ऐसा आना चाहिए एडिशन ऑफ 2 नंबर, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ऐसा मेरे को मैसेज चाहिए, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, उसके आगे इक्वल्स टू मार्क चाहिए, फिर मेरे को ये आंसर चाहिए 120। बट अभी अगर मैं system.out.println c कर रहा हूं तो आई एम गेटिंग 120 एज एन आंसर, करेक्ट। सो इस केस में गाइस, व्हाट मॉडिफिकेशन दैट वी हैव टू डू, आई टोल्ड यू वन थिंग कि जब आपको यूजर डिफाइंड मैसेज देना है, यहाँ पे यूजर डिफाइंड मैसेज देना है println में, तो यूजर डिफाइंड मैसेज शुड बी इन डबल कोट्स, शुड बी इन डबल कोट्स। तो डबल कोट्स में क्या मैसेज देंगे हम लोग, एडिशन ऑफ 2 नंबर। तो दिस मैसेज addition of 2 numbers, addition of 2 numbers,
उसके आगे इक्वल्स टू मार्क। अभी ये यूजर डिफाइंड मैसेज यहाँ से स्टार्ट हुआ है डबल कोट्स, तो यहाँ पे डबल कोट्स एंड हो जाएगा, करेक्ट? करेक्ट। और उसके आगे में ये 120 प्रिंट करना है, और 120 किसमें स्टोर्ड है गाइस? सी। तो ये डबल कोट्स के बाद स्पेस देके आप यूज करोगे प्लस प्लस सी, प्लस सी। इज इट क्लियर? क्लियर। अभी डाउट रहेंगे, आई एम होपिंग कि बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, व्हाई सी डबल कोट्स के अंदर नहीं, व्हाई बाहर, व्हाई प्लस। तो ये प्लस के वजह से कोई स्पेस नहीं आएगा, राइट? इज इक्वल टू के बाद, इक्वल टू साइन के बाद दे भी सकते हो, नहीं भी दिया तो भी कोई नहीं, प्रॉब्लम मैं नहीं। रिजल्ट में बोल रहा हूँ। नहीं, राइट, यहाँ पे आप स्पेस दे रहे हो तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज यूजर डिफाइंड मैसेज, आपका यूजर डिफाइंड मैसेज यहाँ पे डबल कोट से लेके यहाँ तक डबल कोट्स तक है, राइट? बट इक्वल्स टू के बाद आपने स्पेस दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे स्पेस आएगा, फिर इक्वल्स टू मार्क आएगा, ठीक है? तो जो भी वॉट एवर यू आर राइटिंग इनसाइड द डबल कोट्स, वही मैसेज सिस्टम पे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और इसके बाद जो भी मैंने स्पेस दिया है उसका कुछ भी यूज नहीं है, ठीक है? ओके। तो अगर स्पेस देना है तो डबल कोट के अंदर ही देंगे। हाँ, कुछ भी जो भी स्पेस वगैरह देना है, इफ यू वांट यू कैन डू इट, आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सो ये गाइस, ये डबल कोट्स इट इज फॉर यूजर डिफाइंड मैसेज, हमारा मैसेज है ना, कि हमें जैसे लिखना है हम वैसे लिखे, राइट? आई टेल यू वन मोर थिंग, मैंने गलती से ऐसे कर दिया गाइस, मैंने क्या कर दिया, एडिशन ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू, मैंने ऐसे लिखा सी एंड डबल कोट्स को यहाँ पे क्लोज किया, तो व्हाट विल बी माय आउटपुट? जो भी डबल कोटेड में वही बस आउटपुट होगा, राइट? तो यहाँ पे एडिशन ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, मैं करेक्ट? सी। राइट ना? बट 120 आंसर मिलेगा क्या हमें? नहीं। So these all modification that you have to understand guys, कि डबल कोट्स कब लिखना है, डबल कोट्स को कहाँ पे स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, एडिशन ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू डबल कोट्स कंप्लीट प्लस सी। तो जो सी है, सी में जो वैल्यू है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा गाइस, ठीक है? नाउ इज इट क्लियर? Sir, addition of two number equal to double quote plus C ही क्यों? सिर्फ अगर सिर्फ C लिख देते तो वैसे भी A प्लस B का वैल्यू C में तो स्टोर हो ही रहा है ना, प्लस C का क्या मीनिंग है वहाँ पे? वो नहीं। प्लस सी का मीनिंग क्या है ना, कि हम इन फ्यूचर में ऑपरेशन स्ट्रिंग हमने देखा था ना, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, उसमें स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन एक कॉन्सेप्ट आता है। जब वो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन में लाइक आपको कॉन्सेप्ट जब पढ़ाऊंगा तब इस प्लस का मीनिंग समझाऊंगा कि क्या है, ठीक है राधिका? सो हियर प्लस आप ऐसे समझो कि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट को ऐड करने का काम ये प्लस साइन कर रहा है, ठीक है? अच्छा, कॉनकैट कर रहे, ओके, मर्ज कर रहे, हाँ। मर्ज कर रहे हैं। सो इन फ्यूचर लाइक स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन है वो कैसे होते हैं वो हम सीखेंगे, तब ये स्टेटमेंट आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ओके ओके। ऑलराइट, ओके नाइस, एनी मोर क्वेश्चंस? एनीवन? पूजा, कुणाल? जो पहले हमने जो एडिशन ऑफ टू नंबर्स ऐसे कुछ लिखा नहीं था, तो उसमें तो आंसर चाहिए था सी, तो वो डबल कोट में था या वो बस सी था? नहीं, ब्रैकेट वो प्लस ओनली सी था, जैसे कि सिस्टम मैं यहाँ पे आउट, यस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मतलब मैं ऐसे ही लिख रहा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है? करंट टाइमिंग ऐसे समझना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो ये जो था वो सिर्फ सी था ब्रैकेट में, ठीक है? ठीक है आदित्य? ये डबल कोट में नहीं दिया हमने इसका। ये डबल कोट में क्यों नहीं दिया? बिकॉज मेरे को कुछ मैसेज ही नहीं देना था, नहीं तो जस्ट आउटपुट ये सिर्फ 120 प्रिंट करना था।
सी के अंदर 120 वैल्यू तो 120 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। नाउ तो ये वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पे प्लस और उसके आगे सी लिखा था विदाउट एनी डबल कोट्स, ठीक है, विदाउट डबल कोट्स यहाँ पे कंप्लीट किया, प्लस सी लिख दिया, जैसे यहाँ पे अनलीस्ट लिया ना वैसे अनलीस्ट लिया ना वहां पे, ठीक है। हाँ क्लियर? विद द टाइम विद द प्रैक्टिस यू विल अंडरस्टैंड ये ऐसे ही क्यों लिखा। बहुत सारे स्टेटमेंट मैं अभी बोलूंगा एंड मैं शायद आपको एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा आपको कि ये इन फ्यूचर आपके डाउट भी रहेंगे तो इन फ्यूचर क्लियर होंगे, तो इट मींस कि आने वाले टॉपिक में उसका एक्सप्लेनेशन और भी इजी हो जाएगा। बट फॉर टाइम बिंग उसको आपको उस क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन ही रखना है, ठीक है गाइस, दिस इज द वे दैट दिस इज द अप्रोच कि जो हमें और इजी चाहिए, अदरवाइज बहुत सारी चीजें लेंथी भी हो जाएगी, बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगी, ठीक है। सो वी कीप इट वेरी सिंपल, एज आई सेड अर्लियर कि बहुत इजी रखना, जावा कुछ भी नहीं है, एंड वंस यू नो थ्रो विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स बहुत सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी गाइस, ठीक है। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस? अविनाश, ये सिस्टम आउट प्रिंट इन लिखा है तो इसके पहले आपने प्रिंट लिखा था, तो वो मतलब हाँ, प्रिंट ओके। सो अगर मैं सिर्फ प्रिंट लिखूंगा ना कुणाल, तो वो उसी लाइन पे प्रिंट करेगा, ठीक है। और प्रिंट के आगे मैं एल लिखूंगा ना, एल है ये, ठीक है, एल का मतलब है नेक्स्ट लाइन, और लाइन कौन सी? नेक्स्ट लाइन, तो वो एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और प्रिंट करेगा, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सेम है, सिर्फ प्रिंट लिखोगे तो उसी लाइन पे प्रिंट करेगा, ठीक है। ऐसे समझो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एडिशन ऑफ टू नंबर ऐसे लिखा है मैंने, और दूसरा स्टेटमेंट लिखा है एस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे भी मैंने प्रिंट लिखा है, और प्रिंट में मैंने लिखा है जैसे ऐसे समझो कि मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड, मैंने क्या लिखा है? हेलो वर्ल्ड। तो जैसे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्या लग रहा रहेगा कि ये पहले लाइन पे ऐसे प्रिंट हो जाएगा, मतलब ये एडिशन ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 120 ऐसे प्रिंट हो जाएगा, और दूसरा वाला नेक्स्ट लाइन पे आएगा ना हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे आएगा ना हेलो वर्ल्ड, या बट वो ऐसा प्रोग्रामिंग में नहीं होगा। प्रोग्रामिंग का ये कॉन्सेप्ट अगर आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा है हेलो वर्ल्ड, तो वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा पूरा हेलो वर्ल्ड। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? या तो अगर आपको ये वाला स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है, इधर इसको एलएन कर दो, नेक्स्ट लाइन कर दो, और इसको भी नेक्स्ट लाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अपने को अगर हमको इसके एक और नीचे लाना है तो उसमें भी एलएन करना पड़ेगा नीचे वाले, यस करेक्ट, मतलब ओके, ठीक है। बिकॉज आपने सीएमडी ओपन किया रहेगा कमांड प्रॉम्प्ट में हम कुछ चीजें लिखते हैं, वो केस सेंसिटिव होती है, और हम स्पेस नहीं दे सकते, जो सिस्टम देगा वही सारी चीजें होती है, करेक्ट नो? ओके नाइस, इज इट क्लियर? लाइक अभी हम नहीं करते हैं सारी चीजों को डिस्कस, इन फ्यूचर और भी इजी हो जाएगा। इफ इट इज क्लियर गाइस, अगर कुछ डाउट नहीं है तो हम ऑपरेटर में जैसे एडिशन किया था, मेरे को सब्ट्रैक्शन करना है, तो व्हाट ऑल चेंजेस आई नीड टू डू गाइस? क्या क्या करना पड़ेगा मेरे को? a equals to 50 ही है, b equals to मैंने 70 रखा, इन c रखा, यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा? a minus b, राइट। अगर आपने एडिशन ऑफ टू नंबर्स लिखा तो वो वहां पे आउटपुट पे एडिशन ऑफ टू नंबर आ जाएगा। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एडिशन मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन, या फिर व्हाटएवर मैसेज यू वांट, राइट। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू, यहाँ पे अभी बोलोगे अविनाश यू नीड टू डू माइनस c, नो,
you have to keep plus C only. ठीक है गाइस ना Yeah. ऐसा डाउट आया रहेगा कि एडिशन था इसीलिए मैंने प्लस सी लिखा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन एवरी So, स्टेटमेंट अगर ये यूजर डिफाइंड या दिस बिट इंटीजर है तो ये माइनस की वैल्यू भी सेव करेगा, राइट? हाँ यस, माइनस की वैल्यू को भी स्टोर करेगा। a minus b will be minus 20. So yeah, it will be minus 20 and we know it very well कि अगर हमने बाइट भी देखा था, बाइट का भी रेंज माइनस 120 से 8 से लेकर प्लस 127 तक था, करेक्ट? तो नो इश्यूज, वो माइनस नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? So same guys, subtraction of two numbers equals to plus c. Easy? Yes. Yes. मेरे को मल्टीप्लिकेशन करना है ना, so what I need to do? यार सिर्फ साइन चेंज, मल्टीप्लिकेशन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, राइट? तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 15 into 17, whatever the answer I think 3500 I guess, I believe, correct? 35. So 3500 will be your answer. अभी guys a kind of twist, ऐसे समझो कि this is 10 and this is 4. This is 10 and this is okay. Let's keep A 10 है and B 5 है. A 10 है and B क्या है? 5. 5. और int क्या है? C क्या है? Integer टाइप का वेरिएबल है. हम डिवाइडिंग दिस A डिवाइड बाय B, क्या आंसर आएगा? 2. करेक्ट नो? ये 10 है, 5 से डिवाइड किया, 5 2s are 10, करेक्ट? सो हियर टू क्वेश्चन, सो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बट गाइस नाउ द ट्विस्ट इज यहाँ पे B इज 4, B कितना है? 4. 4. Now I have written int C. अभी इसको 10 को डिवाइड करते हैं हम, कितने से डिवाइड करते हैं? 4 से। 4 2s are 8, करेक्ट गाइस? करेक्ट? Yes. Two is नेक्स्ट थिंग क्या होगा? Remainder. Who will be remainder? So here Remainder. we'll take a point, करेक्ट? डेसिमल पॉइंट लेंगे, तो here 0 आ जाएगा, 4 5s are 20. So now my remainder is 0. Now my question का आंसर कितना है? 2.5. 2.5. क्या इंटीजर C इस 2.5 वैल्यू को स्टोर कर सकता है? No. नहीं। Not. तो एरर आ जाएगा। Yes. Yes. गाइस अंडरस्टैंड हो रहा है ना? Yeah. Yes. तो क्या चेंजेस करना पड़ेगा? इंट A इंट B मैं कैसे रख दूंगा? यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? यस, आई कैन डिक्लेयर C एज एन फ्लोट या फिर डबल, व्हाटएवर यू प्रीफर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? एक डाउट है अविनाश, यस जैसे हम लोग ने वो अरिथमेटिक में देखा था कि दिस विल लाइक इफ इट इज डिवीजन सो इट विल जस्ट पिक अप द क्वेश्चन, राइट? तो इधर तो हम लोग ऑलवेज, अगर हम लोग ने कमांड दिया है तो इट विल ऑलवेज वो 0 होने तक वो कैलकुलेट होते रहेगा, राइट, so there is no यस देयर इज नो लिमिटेशन। एंड जैसे कि आपने कोई भी कैलकुलेटर ओपन किया रहेगा तो ये पॉइंट कितना आएगा, 7 डिजिट आएगा, 8 डिजिट आएगा, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड रहता है उसके सॉफ्टवेयर। नो, माय क्वेश्चन वाज कि वो फिर क्वेश्चन को लेना है, तो जैसे हम लोग ने पहले बोला था कि अगर डिवीजन रहेगा तो सिर्फ क्वेश्चन जो आएगा वो रहेगा और मॉड्यूलस रहेगा तो रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर मॉड्यूलस में तो हमेशा 0 आएगा फिर, अगर ऐसे देखने को जाए। नॉट नेसेसरी, मतलब कुछ ऐसा ऑपरेशन नहीं है, ऐसा कुछ ऑपरेशन नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन, मतलब अगर आप लोग फ्लोट यूज कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर आएगा ही नहीं, हमेशा 0 ही आएगा वहां पे, अगर हम लोग फ्लोट यूज कर रहे हैं। फॉर डिवीजन इट इज फाइन। नहीं मतलब एक्चुअली इंटरनली हाउ इट वर्क्स गाइस, इट डिपेंड्स ऑन द साइन। अगर आप डिवीजन साइन यूज कर रहे हो ना, तो डिवीजन साइन को वो ट्राई करता है कि आंसर आपको क्वेश्चन का कहीं पर भी दे, बट जब आप
मॉड्यूलस साइन यूज करोगे ना, दैट टाइम ऑपरेशन इज काइंड ऑफ डिफरेंट। ऑपरेशन वो कभी भी आपका डेसिमल में नहीं लेके जाएगा, पॉइंट में नहीं लेके जाएगा। मतलब जैसे हमने 10 को डिवाइड किया था बाय 4, 4 5 4 2s are 8, ऐसे हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी 2, राइट? सो यार आपका डायरेक्टली आपका आंसर रिमाइंडर इज 2। फर्स्ट इंटरवल में जो रिमाइंडर आएगा वही आपको रिटर्न कर देगा। गेटिंग माय पॉइंट? ओके हाँ इट्स नॉट डिपेंड ऑन कि आप फ्लोट यूज कर रहे हो कि नॉट डिपेंड ऑन कि आप वहां पे इंटीजर यूज कर रहे हो, बिकॉज़ कंप्यूटर डजंट नो एनीथिंग। इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन द साइन, which type of sign you are using, whether it is division sign or whether it is modulus sign। हाँ, नहीं मुझे लगा फ्लोट है तो उसको मतलब उतना भी फ्रीडम है कि The problem is it can store 2, but it cannot store 0.5, right? So वहीं पे आपको syntax error आ जाएगा, ठीक है? कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा आपको, जिसको कंपाइल टाइम एरर आता है। इन फ्यूचर हम एरर हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखने वाले, दैट टाइम विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। कुछ कंफ्यूजन्स गाइस? कुछ भी कंफ्यूजन? अविनाश कभी यस हेलो यस अविनाश कभी हमें नंबर मतलब पता नहीं रहेगा कि उसका वैल्यू इंटीजर आएगा कि फ्लोट आएगा, तब क्या लिखेंगे हम? Okay, just a minute, give me 1 minute. Just let me put this for charging. Okay, so your question is कि हमें पता नहीं रहेगा तो what we are going to do, right? हाँ Okay, just a minute. Last minute. So Shruti, the simple thing, आपको पता नहीं है ना, तो टेक फ्लोट है, ठीक है? मतलब जैसे फ्लोट में अगर आपने यहाँ पे फ्लोट यूज करा है, करेक्ट? एंड ऐसे लेते हैं हम 10 को 10 डिवाइडिंग 10 इज डिविजिबल बाय 5, राइट? इन दिस केस क्या हो जाएगा? 5 2s are 10, करेक्ट? रिमाइंडर इज 0, सो योर आंसर इज 2, नो? तो वो कंसोल में क्या प्रिंट करेगा? 2 की जगह पे 2.0 प्रिंट कर देगा, राइट? तो एडवाइसेबल है कि फ्लोट ही लो, बिकॉज नंबर्स तो पता फ्लोट नहीं। कर लो, हाँ। मतलब इन फ्यूचर अगर आपको कंफ्यूजन है, बट सी यहाँ पे आप डिक्लेयर करते हो, डिक्लेयर करते टाइम आपको पता हो जाएगा कि मेरे को क्या करना है, आगे क्या करना है। मेरे को रिजल्ट किसमें स्टोर करना है, फ्लोट में करना है, डबल में करना है कि इंट में, लाइक इंट में करूं, डॉट में करूं। बिकॉज़ सी दिस इज फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, बट वी नेवर नो कि एंड यूजर क्या करेगा। ओके, एंड ऑडियो यूजर जाके वहां पे कुछ भी इनपुट दे सकता है, सो दैट्स हाउ टू बी सेफर साइड यूज फ्लोट, ठीक है? स्पेसिफिकली अगर वो डिवीजन ऑपरेशन है तो यूज फ्लोट। माय एडवाइस विल बी फ्लोट, ठीक है? ओके Okay, any more queries, guys? Any more queries? Done. You are trying to, trying to speak up, but your voice is not audible, I think. No, actually mic was on, so it was just background noise. Okay. No problem. Any queries, guys? Basic understanding. आज कॉम्प्लेक्सिटी नजर आ रहा है जावा का थोड़ा कि नहीं? अभी तक नहीं। नहीं है अभी तो। I hope everyone is there. No one is sleeping, right, guys? Yeah. चलो, ठीक है. Should we go ahead then? Like, if it is clear? अविनाश Yes, Kunal. इफ आई वांट टू प्रिंट मतलब डेसिमल के बाद 2-3 जो डिजिट्स है तो वी हैव टू यूज डबल Not necessary, दोनों में आ जाएगा। अगर फ्लोट देखोगे ना कुणाल, फ्लोट की साइज कितनी थी? 4 बाइट। और डबल की कितनी थी? 8 बाइट। 8 बाइट। करेक्ट? तो ये फ्लोट जो होता है ना, डेसिमल पॉइंट के बाद
अप टू 7 डिजिट्स प्रिंट करता है। ओके ओके और डबल जो है पॉइंट के बाद अप टू 15 डिजिट्स को प्रिंट करता है। ठीक है, सो आप कोई भी यूज कर लो, 2-3 पॉइंट का है तो नॉट नेसेसरी, मतलब जनरल कैलकुलेशन में क्या है, पॉइंट के बाद ज्यादा से ज्यादा 2 डिजिट चेक करता है, फिर 3 डिजिट, इससे ज्यादा तो चेक ही नहीं करता। या सो लाइक यू कैन यूज फ्लोट इन दैट केस। ओके ओके ठीक है, any more queries anyone is having? Clear to all of you? यस Yes. Okay, fine. So guys, as we have discussed this, थोड़ा सा हम ये इंटरनली कैसे वर्क करता है we'll talk about it. ठीक है, कुछ चीजें कॉम्प्लेक्स होगी तो लेट मी नो, हम उसको ट्राई करेंगे कि सिंप्लीफाई करें। एंड माय टास्क इज टू डू द सिंप्लीफिकेशन इटसेल्फ, नथिंग। थोड़ा सा इसको अभी अंडरस्टैंड करते हैं कि जावा इंटरनली वर्क कैसे करता है। सो गाइस, जब भी आप इसको प्रोग्राम को रन करोगे तो फर्स्ट कमांड दैट वी हैव टू यूज, जैसे अभी मान के चलो आपने नोटपैड ओपन किया, यू हैव ओपन नोटपैड में आपको इस प्रोग्राम को टाइप करना है, और जब हम सेव करते हैं ना तो उसको सेव करना है .java में, और जावा में इस फाइल का नाम क्या आएगा, जो क्लास का नेम है, क्लास का नेम क्या था मेरा, prog, राइट? सो माय फाइल नेम विल बी prog.java, दिस विल बी माय फाइल नेम। आपको इसको .java में सेव करना है, ठीक है? I'll show you, don't worry। फिलहाल आपने क्या किया, prog.java इस तरीके से इसको स्टोर किया। इसको स्टोर करने के बाद इसको आपको कंपाइल करना है। इसको आपको क्या करना है गाइस, कंपाइल। तो कंपाइल का मीनिंग क्या होता है ये अभी अंडरस्टैंड करते हैं। तो सिंपल सा कंपाइल का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट डे वी हैव डिस्कस्ड, क्या कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश? नो राइट? सो कंप्यूटर को ये अंडरस्टैंड ही नहीं होगा कि हमने क्या लिखा है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन को जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड होती है उस लैंग्वेज में, राइट? सो गाइस, मेरे पास ये program.java फाइल है which is in high level language, it can be in Marathi, it can be in Hindi, it can be in English, Japanese, Korean, कोई भी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा है हमने, इसको बोलेंगे हाई लेवल लैंग्वेज which is not understood by any machine। So the next task, ये हाई लेवल लैंग्वेज को हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये program.java को we are going to convert in a low language। तो ये हम नहीं करेंगे, तो इसके लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड टूल की जरूरत होती है, स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म की जरूरत होती है। दैट मैकेनिज्म इज नथिंग बट द कंपाइलर। दिस मैकेनिज्म इज नथिंग बट द कंपाइलर। तो ये कंपाइलर क्या करता है, ये कंपाइल करता है मतलब क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करता है गाइस, लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लेवल लैंग्वेज में। Am I correct? Yeah. It makes sense, guys? Yes. Yes. We have one intelligent device with us जो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज से मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है। and that device is nothing but the compiler। ठीक है? Yes. Right? So Right. the next step, जब आप कंपाइल करोगे तो what compiler is going to do? Compiler is going to convert this high level language into low level language। तो ये क्या करेगा, इसके लिए आप कमांड यूज करोगे जावाc। आप कमांड कौन सी यूज करोगे, C. So जावाc क्या है आपका, इट इज अ कंपाइलर। C stands for compiler, जावा कंपाइलर। ठीक है?
जावा सी, जावा कंपाइलर, कंपाइलर किसको कंपाइल करना है हमें? प्रोग्राम डॉट जावा को, प्रोग्राम डॉट जावा जावा को, am I करेक्ट? तो ये कंपाइलर क्या करेगा? प्रोग्राम डॉट जावा जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा। तो लो लेवल जो लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा, दैट आउटपुट विल बी अ क्लास फाइल, दैट आउटपुट विल बी अ क्लास फाइल। जैसे हमारे प्रोग्राम का स्टेटमेंट क्या है गाइस? क्लास क्लास, और ये क्लास नेम ही हमारा प्रोग्राम का नेम है, हमारा करेक्ट? सो द नेक्स्ट स्टेप जब हम जावा सी प्रोग्राम डॉट जावा कन्वर्ट करेंगे तो इट इज गोइंग टू प्रोवाइड अस, सॉरी हियर वी शुड बी द capital. So here my output will be program dot class, program dot क्लास। अंडरस्टैंडिंग दिस। अभी नहीं समझेगा, थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा तो भी कोई टेंशन नहीं लेना। यस, टुमारो व्हाट विल डू, आई विल शेयर अ स्क्रीन विद यू गाइस, ये कैसे कंपाइल होता है, ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, विल टॉक अबाउट इट। अगर आपको इसका कॉम्प्लेक्सिटी समझेगा ना तो इसके बाद हम इनबिल्ट मतलब कुछ प्री डिफाइंड एडिटर्स होते हैं जिसमें सारी चीजें पहले से लिख के आती है, उसका यूज करेंगे। बट बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड लॉजिकली इंटरनली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है? सो गाइस सिंपल सा है, हमने एक अंडरस्टैंड किया कि हमने ये प्रोग्राम पूरा इंग्लिश में लिखा है, am I correct? Understanding just overview of your Compiler. high level language, low level language और compiler का. After this compiler will load this or will execute this program. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे जावा। तो उसको पता है कि ये डॉट क्लास फाइल है, तो सिर्फ इतना स्टेटमेंट रन कर देंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगा, सेकंड स्टेटमेंट ये रहेगा, इतना हम रन कर देंगे, विल गेट एन आउटपुट ऑन कंसोल, आउटपुट ऑन कंसोल, ठीक है? हमारा जो कमांड प्रोग्राम का कंसोल है, इस पे हमारा आउटपुट एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट हैपनिंग इंटरनली। आई होप, ये ज्यादा डिफिकल्ट लग भी रहा रहेगा तो भी आपको इसका कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज that is for your understanding. This all things जो भी हमने रामायण लास्ट 5-10 मिनट में किया, this is all about for your understanding. ठीक है guys? Okay. Also this high level language को हम कन्वर्ट करेंगे low level language में. For that we need a compiler. ठीक है? Compiler. अभी कंपाइलर के बाद we have one more thing, that is JDK, we have JRE, we have JVM. ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है
कंपाइलर, जेडीके, जेआरई, जेवीएम। सो कंपाइलर का कॉन्सेप्ट समझा क्या आपको, क्या करता है कंपाइलर एग्जैक्टली? यस Yeah. ये हाई लेवल Yes. लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज Low में level. कन्वर्ट करके दे, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट जेडीके, तो ये है जावा डेवलपमेंट किट। इसका फुल फॉर्म क्या है? जावा डेवलपमेंट किट। We'll talk about this not today. We'll talk about this tomorrow. JRE ये होता है जावा रनटाइम एनवायरनमेंट, जावा रनटाइम एनवायरनमेंट, ठीक है। Just writing for you guys. जावा रनटाइम एनवायरनमेंट, ठीक है। और जेवीएम, जेवीएम स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन, ठीक है। गाइस अंडरस्टूड? जस्ट इसके अंडरस्टैंडिंग नहीं समझनी है, जस्ट फुल फॉर्म समझ लो। अभी जेडीके क्या है? दैट इज जावा डेवलपमेंट किट। जेआरई दैट इज जावा रनटाइम एनवायरनमेंट। जेवीएम दैट इज जावा वर्चुअल मशीन। इस पे शायद ही कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम मतलब इंटरव्यू में, शायद फ्रेशर अगर हो तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बट अगर आप फ्रेशर नहीं हो, as you are going as an experienced person, that time there are so less chances कि आपको इस पे कोई क्वेश्चन पूछेगा, एंड मतलब 1% चांस भी नहीं है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। और कोई सर्टेन सिचुएशन में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, बट विल क्लियर इट आउट कि ये क्या होता है। यस यस राधिका। सर त्याचं वर्क काय आहे जेडीके जेआरई? ते काय काम करतात? ते चेंजेसच करतात का मशीन? Yes, obviously these are I mean these all tools are the जैसे कंपाइलर का काम था हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, और बाकी के सारी चीजों का कुछ ना कुछ काम है। हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए सारी चीजें लगती है, ये बैकग्राउंड में रन होती है, बट हमें नहीं पता होता इनका काम क्या है। बट बिफोर राइटिंग एनी प्रोग्राम हमें ये पता होना चाहिए। तो विल टॉक अबाउट दिस टुमारो, डोंट वरी, विल क्लियर इट आउट। बट फिलहाल के लिए आज का कॉन्सेप्ट था हमारा कंपाइलर। ये कंपाइलर कॉन्सेप्ट समझा क्या आप लोगों को सबको? Yes. ठीक है। Yes. टुमारो व्हाट विल डू, वी विल टॉक अबाउट दिस जेडीके, जेआरई, जेवीएम, इसका इंटरनल आर्किटेक्चर कैसे होता है, कैसे वर्क करता है। बिफोर दैट हम क्या करेंगे, एक हाथ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखेंगे, ठीक है। फिर विल कम टू दिस टॉपिक, फिर आप ये आपको और भी इजी जाएगा। अगर मैंने आज अभी इसका डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया, यू विल फील लाइक कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही है चीजें, तो उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। बट मेरा ऐसा ही एक लॉजिक है, अगर आपको कोई भी चीज आप कर रहे हो तो उसके पीछे का लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए कि ये क्यों कर रहा हो, ठीक है, और ये कैसे हो रही है। तो इनका यूज we'll talk about tomorrow. I mean, for sure we'll talk this. I mean, we'll discuss this tomorrow. The first thing you have to do, मतलब इससे पहले आपको एक दो चीजें और अंडरस्टैंड करनी है। We need certain things. एक हमें लगता है एडिटर। एडिटर क्या होता है? कोई भी प्रोग्राम को एडिट करने वाला जो एप्लीकेशन होता है उसको हम एडिटर बोलते हैं। You can use any editor. नोटपैड यूज कर सकते हो आप लोग, नोटपैड प्लस यूज कर सकते हो आप। आपको अगर यूज करना है तो आप इक्लिप्स यूज कर सकते हो, बहुत सारे एडिटर आते हैं। सो दिस इज बेसिकली एडिटर। एडिटर मतलब क्या होता है? जो प्रोग्राम को एडिट करने में यूज होगा उसको हम एडिटर बोलेंगे। आफ्टरवर्ड्स एडिटर के बाद हमें एक चीज और लगती है, आईडीई। IDE stands for Integrated Development Environment. Integrated Development Environment. इसके एग्जांपल्स आते हैं Eclipse, WebStorm। इसके और एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो विजुअल स्टूडियो वगैरह, विजुअल स्टूडियो 2008 एंड ऑल, लाइक बहुत सारे हैं। लाइक we'll be using Eclipse, वो कैसे करना है we'll talk about it later, don't worry. So these are the certain things that you should keep in your mind, ठीक है। Guys,
You all are joining from laptop, I believe. Yes. Anyone who is joining from phone? Yes, Avinash, I am from. Yes. So Today I you okay, no problem. But I believe you are having laptops, your machines with you. अभी तक Yeah. किसी का मशीन रेडी नहीं है, Yes, कोई है क्या? चलो, so what we will do now, मतलब मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, वो आपको करनी है. Let me know once my screen is visible to you guys. Is it visible? Guys, is it visible? Not yet. Not yet. Okay. Let me know once it's visible. Yes, it is. Okay, yeah, it's visible, right? That's what I'm asking. Okay, fine. Yes. So guys, the first thing you have to do, you have to download JDK. You have to download JDK. ठीक है? So first हम इसको JDK को समझते हैं. देखो guys, this is Java Development Kit. Am I correct? Guys, I hope this is visible to you. yes, yes. ठीक है? So आज के दिन आपको एक काम करना है. One task for you guys. Just type JDK download. This website will appear, http://oracle.com, right? Go on to this website, right? इसके ऊपर आप जाने के बाद what you guys have to do, you have to download the JDK. So just you have to click over here, Java downloads. ठीक है? You will appear, I mean this kind of screen will be appearing. So the simple thing you have to do, okay, don't do this directly. Type JDK 8, Java JDK 8 या फिर JDK 8 download. JDK 8 will be using JDK 8. ठीक है? Click this website. You will end up again. Okay, still it is showing the same. JDK 8 download. Okay, fine. Okay, guys, if you are getting JDK, then well and good. Otherwise, you can use this one. कौन सा वाला? JDK 11. You're getting this? Java SE Development Kit 11, correct? So you can use this as well. So यहाँ पे इस पे जाने के बाद यहाँ पे different operating systems आएगा. So you have to select Windows. आप सबके पास Windows ही रहेंगे, I hope. Guys, inside Yes. Windows, once you Yes, go, yes. you have to select which type of file you want to download. So Windows का 64-bit installer है, so you can download this 64-bit installer. ठीक है? So जब आप इस पे क्लिक करोगे, you will land up on this kind of pop-up. So इसको read करो, download पे जाओ. So before downloading, ये आपको इस तरीके से अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा. सो आई बिलीव अगर आपके ओरेकल अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट दिख रहा है सबको. जस्ट हिट अ क्लिक ऑन दिस क्रिएट अकाउंट, गो टू दिस ओरेकल वेबसाइट. यहाँ पे कुछ डिटेल्स पूछेगा, कुछ भी नाम डाल, आपका नाम वगैरह डाल दो एंड ऑल, मतलब कंपनी नेम वगैरह कुछ डाल, मतलब जस्ट जॉब टाइटल एंड ऑल करेक्ट मत डालो. अगर डाला मतलब एंटर करना है तो एंटर कर लो, कोई दिक्कत. ईमेल आपको ईमेल आ जाएगा. आप जो ईमेल आईडी दोगे उसमें वेरिफिकेशन करने बोलेगा आपके अकाउंट का, उसको वेरीफाई कर दो. योर अकाउंट विल बी ओपन. नेक्स्ट टाइम फिर यहाँ पे आ जाओ एंड यूज द सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड साइन इन. जैसे ही साइन इन हिट कर दोगे, लाइक आपका जेडीके डाउनलोड हो जाएगा. अगर ये नहीं हो रहा है तो व्हाट वी कैन डू, I'll upload one file on Google Drive.
और गूगल ड्राइव की लिंक आपको ग्रुप पे मिल जाएगी, वहां से आप JDK 8 या फिर JDK 11 आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। JDK डाउनलोड कर लो। JDK को once you download this JDK, guys, your JDK will look like this. JDK installer ये इस तरीके से दिखेगा, ओके। दिस इज योर JDK। सो इसको आप जब रन करोगे तो इट विल आस्क फॉर अ परमिशन, गो अहेड, गिव द परमिशन, गो नेक्स्ट, हिट नेक्स्ट ऑल, इंस्टॉल कर लो। वंस यू इंस्टॉल्ड, I have already installed this thing, so आपको इंस्टॉल होने के बाद एक चीज जरूर करनी है, ओपन योर कमांड प्रोम्प्ट में जाओ और यूज जावा हाइफन वर्जन, ओके, जस्ट अ मिनट, जावा हाइफन वर्जन, I think I haven't installed it. Okay. शायद मेरे इसमें भी इंस्टॉल नहीं है। So once you hit this command, you will get one output कि आपका JDK इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। So we'll see tomorrow, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मेरे को बताओ कल, आप प्रॉब्लम्स जो भी आ जाएंगी, you can let me know. You got my point? आपको JDK इंस्टॉल करना है for time being. Okay. And I believe you guys will be using your personal laptops कि कंपनी के वर्क स्टेशन वगैरह यूज कर रहे वैसे है? No, personal laptops. Personal laptop, computers, whatever you have, you can use these kind of thing. And guys, at least अगर किसी का प्रॉब्लम है डिवाइस का वगैरह, मैनेज योर डिवाइस फ्रॉम मंडे, एटलीस्ट टिल मंडे, लाइक मंडे से हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, तो तब तक आपके पास टाइम है, you can go ahead and arrange your devices, ठीक है। Yes. Right guys, I think we are good to go. Like any questions as of now? अगर कुछ questions है तो let me know, otherwise we'll continue tomorrow, and so that आप manual lecture अपना attend कर सकते हो। ये JDK जो है ये अभी तुरंत ही डाउनलोड करना है? नहीं, you can download it today, tomorrow, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और ये x86 इंस्टॉलर, x64 इंस्टॉलर, ये दोनों में से कौन सा करेंगे? 64 करना है, it depends, okay, just a minute. आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। Let me know once my screen is visible to you. 64 ही है। Yes. It is visible. Guys, fine. So you know it very well कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चेक करते हैं। यहाँ पे आ जाओ, लाइक आपके माई कंप्यूटर दिस PC पे, हिट प्रॉपर्टीज, इनसाइड दिस यू विल कम टू नो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, करेक्ट। Here you can see system type, my operating system is 64 GB, करेक्ट। अगर this is 64 बिट, अगर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है तो x64 को डाउनलोड करना है। अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे 32 लिखा है तो x86 को डाउनलोड करना है आप लोगों को, ठीक है। ओके गाइस, ओके, चलो, लाइक नहीं भी होगा तो I'll show you tomorrow how to do the installation and all. So I believe things are very clear. मतलब अभी हम प्रोग्रामिंग का थोड़ा पार्ट स्टार्ट कर देंगे, सो दैट लाइक कल हम JRE एंड ऑल, ये जो सारे क्वेश्चंस है, टॉपिक है, विल कवर अप एंड लेटर ऑन विल मूव अहेड, ठीक है। शुड वी कंक्लूड गाइस? यस। Yeah. यस। All right, yes. Thank you guys, have a good day.